हेलो। मैं आज एक नया टॉपिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये पोर्टफोलियो। सो I will try to explain the how to manage portfolio in this risky market. Okay, so now uh, can I start? Okay. Portfolio means there is first question. What is meaning of portfolio? So portfolio means a very simple collection of investment. See, there are many types of investment like stock, bond, mutual fund, even in bank, and many more. So portfolio means collection of investment all owned by the same individual. It's mean कि एक ही इंसान के द्वारा, एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्वेस्ट करना, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह का। सी, कभी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, कभी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, कभी बैंक में इन्वेस्ट करना। एक ही by the same individual उस इन्वेस्टमेंट को simply we known as a portfolio. Portfolio may be defined as a bundle of security. Security means same stock, bond, whatever, bank investment. These investment often include stock, which are investment in individual business, bonds, which are investment in debt that are designed to earn interest. So everyone try to earn interest, and mutual fund, which are essential pool of money from many investment that are invested by professional, according to index. इन्वेस्टेड बाय म्यूचुअल फंड में मेनली इन्वेस्ट किया जाता है प्रोफेशनल, और इवन वी आर ऑल्सो कैन इन्वेस्ट इन. So there is a more question like a portfolio analysis. Analysis means analysis is the process of reviewing or assessing the elements of entire portfolio of security or products in a business. Analysis क्या होता है? Analysis एक process है review या access करने की कि whether I am right या wrong. So the review is done for careful analysis of risk and return. There is mostly two elements included in investment. First one is the risk and second one is return. There is two chance हो सकता है, मे बी रिस्क एंड रिटर्न होगा, लॉस भी हो सकता है एंड रिटर्न भी हो सकता है. Portfolio analysis conducted at a regular interval help the investor to make change in the portfolio location. See, अगर पोर्टफोलियो एक बार हम इन्वेस्ट कर दिए अलग एक ही स्टॉक में, तो एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हम जो इन्वेस्ट किया उससे हमें रिटर्न भी आ रही है या नहीं आ रही है, एंड चेंज देम अकॉर्डिंग टू द मार्केट. पोर्टफोलियो totally depend upon the market circumstances. So market में जो फ्लक्चुएशन आएगी, लाइक कभी इन्फ्लेशन आ गया, कभी ट्रेड वार आ गया, कभी टैरिफ लग गया, कभी गवर्नमेंट चेंज हुई, इन सारे रीजन के वजह से इन्वेस्टमेंट के सर्कमस्टांसेस में चेंज आती है. वी हैव सीन रिसेंटली कि टैरिफ लगने से स्टॉक धड़ाम से गिर गया. अभी फार्मा पे 100% टैरिफ लगा है, तो स्टॉक बिल्कुल ही डाउन हुआ है. तो ये हमें पहले ही फ्यूचर फोरकास्ट करनी होगी कि ये जो मैंने पोर्टफोलियो में अलग अलग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किए हैं, क्या वेदर इट इज राइट या रॉन्ग, आई हैव टू विथड्रॉ मनी या आई हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन दिस इन्वेस्टमेंट. So this is the analysis. Then management. This is the subject of management portfolio. So we have to understand what is
What is portfolio management? It is the art and science of making decision about investment mix and policy, matching investment to objective, assets allocation for individual and institution, and balancing risk against performance. So it is the management means कि it is the arts and science है making decision about investment mix. इन्वेस्टमेंट मिक्स अलग अलग इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्ट करने को इन्वेस्टमेंट मिक्स कहते हैं. सो मैं जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था वो फुलफिल कर रही है कि नहीं, असेट्स का एलोकेशन अलग अलग किए थे उससे रिटर्न आ रहा है कि नहीं, एंड रिस्क जो जितना मैनेज करने के लिए हमने सोचा था कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट में अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क कम होगा, वो हो रहा है कि नहीं. द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ मिनिमम रिस्क. So everyone try to get better and bear at most least less risk. So यहाँ हम रिस्क कम हो एंड रिटर्न ज्यादा हो, सबकी यही डिजायर रहती है. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है उसकी भी डिजायर यही है कि रिस्क कम हो, रिटर्न मैक्सिमम हो. कॉलर इसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं. इट ऑल्सो रिफर टू मैनेजिंग एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड. अलग अलग फॉर्म में करते हैं लाइक बॉन्ड, शेयर, कैश, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, सो दैट ही अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. सी अब कभी हम देखते हैं कि भारत के आदमी दुबई से गोल्ड खरीद रहा है, गोल्ड खरीद रहे हैं. इवन हमारे देश में भी गोल्ड बिक रही है. तो वहां हम ऐसे देखते हैं कि दुबई की गोल्ड का रेट कम है और यहाँ के कैश का जो वैल्यू है डॉलर के टर्म में वो ज्यादा है. तो हम जब वहां से गोल्ड खरीदेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगी, इसलिए हम दुबई से गोल्ड खरीद लेते. तो उसको भी पोर्टफोलियो, एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो ही है. डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अलग अलग तरह के रिस्क को. सो it is done by analyzing the strength, weakness, opportunity, and threats in different investment alternative to have a risk return trade-off. Portfolio management is all about strength, weakness, opportunity, and threat in the choice of debt versus equity, domestic versus international, growth versus safety, and many other trade-off. Trade-off means risk and return encountered in the attempt to maximize return at a given appetite for risk. इसमें कि रिस्क कम हो और रिटर्न मैक्सिमम हो. Understanding the dynamic of market is the essence of portfolio management. It's mean कि डायनेमिक, मार्केट डायनेमिक है. डे कल कुछ और था, परसों कुछ और होंगे. ये डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग. तो ये अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक ऑफ मार्केट इज द एसेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ओके, इन शॉर्ट्स दिस मीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली three criteria या क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लाइक वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करनी है, व्हेन टू इन्वेस्ट, टाइमिंग क्या होगी, हाउ मच टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्टमेंट, स्टॉक में करनी है, गोल्ड में करनी है, सिल्वर में करनी है, म्यूचुअल फंड में करनी है, बैंक में देना है. व्हेन टू इन्वेस्ट, टाइम क्या होगा, हाउ मच टू इन्वेस्ट कि कहाँ गोल्ड, कितना अमाउंट गोल्ड में करेंगे तो प्रॉफिट मैक्स आए, कहाँ कितना अमाउंट कैश में बैंक में करेंगे तो प्रॉफिट मैक्स आए. तो ये पोर्टफोलियो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट के एक ब्रांच बंचेस को मैनेज करना ही पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट सोर्स में कहेंगे. टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो बेसिकली दो काइंड में डिवाइड किया गया है. द मार्केट पोर्टफोलियो, फर्स्ट मार्केट एंड सेकेंड जीरो. So market portfolio is a theoretical bundle of investment that include every types of assets available in the investment with each asset weight in proportion to its total presence in the market. The expected return of a market portfolio is identical to the expected return of the market as a whole. See, इसमें कि सारे का इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट पोर्टफोलियो का मीन्स है कि ये सारे इन्वेस्टमेंट एक ही तरह के रहेंगे,
सी गोल्ड में इन्वेस्ट करनी है तो बस गोल्ड में ही कर रहे हैं, स्टॉक में करनी है तो स्टॉक में कर रहे हैं, इसमें आइडेंटिकल रहेगी। मार्केट के रिस्क पे तो होता ही है पोर्टफोलियो, लेकिन एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट होगी, उसको मार्केट पोर्टफोलियो कहते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ए पोर्टफोलियो ऑफ असेट्स फॉर्म वेयर द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कलेक्टिवली फॉर्म अ जीरो नेट वैल्यू। इट्स मीन की सारे अगर इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दें तो हमारा कोई ना लॉस हो ना कोई प्रॉफिट हो, जीरो नेट वैल्यू आ जाए, उसको जीरो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहते हैं। ओके, सो टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। एक्टिव मीन्स नाम एज द नेम सजेस्ट, एक्टिव मीन्स हम एक्टिव हैं। इन एन एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस द पोर्टफोलियो मैनेजर आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिट टू इंडिविजुअल। इट्स मीन कि हम एक्टिव मतलब है कि हम खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और पैसिव मतलब हुआ कि हम किसी के थ्रू करा रहे हैं। ओके, इन शॉर्ट दिस इज द क्रक्स। ओके, एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होता है प्रॉपर असेट्स का एलोकेशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, रीबैलेंसिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग हो। Proper assets allocation means the key to effective portfolio management, the long-term mix of assets. Assets allocation is based on the understanding that different type of assets don't move in concert and some are more volatile than other. Assets allocation seek to optimize the risk return profile of an investment. Investor by investing in a mix of assets that have low correlation to each other. से प्रॉपर असेट्स का एलोकेशन हो, क्योंकि एक कोई असेट्स होता है जो काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, कभी कभी उसकी रेट हमेशा चेंज होते रहती है, कुछ असेट्स रहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स रहते हैं। तो प्रॉपर असेट्स का एलोकेशन हो, ज्यादा लॉस नहीं हो। अगर हम वोलेटाइल एसेट्स हम खरीदे हुए हैं तो हमारे पास ऐसा ना हो कि हमारा बिजनेस हमेशा लॉस में ही जाए, उसको प्रॉपर हो, एलोकेशन हो, उसमें रेशियो बनाए कि कुछ वोलेटाइल भी करने हैं कुछ फिक्स भी करनी है। एंड सेकेंड वन डाइवर्सिफिकेशन। सी only certainty in investment, it is impossible to consistently predict the winner and loss, so the prudent approach is to create a basket of investment that provide broad exposure within an assets class. See, diversification मतलब अलग अलग तरह की, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या लॉस का चांस है, क्या विन का चांस है। सो अलग अलग बास्केट ले लिए, कभी कुछ पैसा शेयर में इन्वेस्ट किया, कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कुछ बैंक में इन्वेस्ट किया, एक ब्रांच बना लिए एक। सो इस दैट इज दिस इज नॉन एज डाइवर्सिफिकेशन। Rebalancing and restructuring, it is used to return a portfolio in your original target allocation at annual interval. It is important for retaining the assets mix that best reflect an investment return. Otherwise, the movement of the market could expose the portfolio to greater risk or reduce return opportunity. Portfolio that start out with a 70% equity and 30% fixed income allocation could thought an extended market relative allocation that rebalance करनी है कि फर्स्ट टाइम में अगर हमने ऐसा किया है कि 70% इक्विटी करता है, 30% फिक्स असेट्स, तो इसमें लॉस हुआ है तो इसमें रीबैलेंस करनी है, फिर से बैलेंस करनी है कि कितना परसेंट। इधर थिक दो टर्म होता है, थिन इक्विटी एंड थिक इक्विटी। तो इक्विटी ज्यादा रखनी है या इक्विटी कम रखनी है, तो रीस्ट्रक्चर के अगर इक्विटी ज्यादा रखेंगे तो हमें
थिक इक्विटी के कहेंगे, थिक इक्विटी मार्केट कहेंगे, एंड इक्विटी कम रखेंगे तो उसको थिन इक्विटी मार्केट करेंगे। तो इसको रीबैलेंस करनी है, ज्यादा लॉस हो रहा है, इक्विटी इक्विटी हम ज्यादा रख रहे हैं, तो थोड़ा बैलेंस करेंगे कि इसमें फिक्स इनकम आना चाहिए, सिर्फ इक्विटी पे डिपेंड ना हो। अलग अलग तरह के एलोकेशन करेंगे कि उसको 80 to 80, 20 करेंगे, 20 फिर उसको कट करके थोड़ा और करेंगे, सो दैट ये एलिमेंट्स मेनली 3 तरह के होते हैं: प्रॉपर असेट्स एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड रीबैलेंसिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। हाँ, तो yes, portfolio number, this first one is denoting portfolio number, second one is denoting expected return, and last one is risk. So we are seeing ki portfolio number 3 and 4, what we are seeing ki risks are same, इधर 3 नंबर पर पोर्टफोलियो पे रहो या 4 नंबर पे, रिस्क 7.8 एंड 7.8। तो हम किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा जिसमें ज्यादा होगा उस पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो सी 4th नंबर आर गेटिंग मोर, 11% एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ओके, एंड सी हियर 5 and 6, this is portfolio number 5 and 6, and expected return both are same, 11%, and risk are 11.3 and 12.8। तो what would be the prudent concept saying here कि जिसमें रिस्क कम हो उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करनी है, हमेशा रिस्क जिसमें कम हो उसमें इन्वेस्ट करनी है। तो 5.1 is denoting we are getting 11.3 risk, less than 12.8, so better to invest in portfolio number 5. So I hope this video will help you, and thanks, you give me feedback and also a topic. I will try to cover your topic. So thank you. तो सी यहाँ हम देख रहे हैं कि